Right now, we have National President Dr. R.V. Ashokan of Indian Medical Association, and we're going to have an exclusive interview with him regarding the Kolkata rape murder case. So, first of all, what do you think about the case and the possibilities of getting justice as soon as possible? Regarding the case itself, it's qualitatively different from all the violent incidents that have ever happened in hospitals. In the sense, it was a crime. Earlier, it was used to be the emotional reaction of the patients or their relatives to a sudden death. But this was qualitatively different, which exposed the vulnerability with which the doctors and other healthcare professionals are doing their duty in our hospitals. Hospitals are institutions which are open 24 into 7, and the services are expected to be in place even in the middle of the night. So by nature of the service itself, all these doctors and the nurses, they become vulnerable. And the gaps in the administration of the security has been brought out by the gruesome incident. And the subsequent incidents have happened both in the state itself as well as at the central government level. And at the state level, the things were perfect on the day one. The reactions of the chief minister were very appreciable. From day one, we do not know. We think the investigations got stalled up. Yeah. They didn't move forward. So much so the High Court of West Bengal had to transfer the case to CBI. At the same time, it shook the conscience of the entire nation. So the entire nation, not only the medical professionals, they were all in protesting. And IMA itself, we called the withdrawal of services across the nation on 17th for 24 hours. We also put forward to the union government that a central law against violence in hospitals, declaring hospitals as safe zones, and a comprehensive review of the working and living conditions of the resident doctors have to be done. And justice with the probe that is going on, and exemplary punishment to the culprits. So actually, yesterday there was a hearing in Supreme Court regarding this case only, and Supreme Court said that there should be a resume the services at the hospital with under the security of CISF and all that, security and guards and will be there in hospitals. And RG Kar's hospital was specially mentioned there that there should be a proper and tight security by CISF there, and there should be resume of the services. What do you think about that, sir? There's an immediate relief that has been given by the Supreme Court, and the resident doctors are still on strike. Yeah. I think they will be considering the request of the Supreme Court of India. As such, Indian Medical Association called for withdrawal of services of the entire medical fraternity of the country across all districts only for one day. We are studying the judgment of the Supreme Court of yesterday. And also, we are working on what the health ministry had to say 2 days before. इस समय हमारे साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अनिल नाइक जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। सर, कोलकाता केस की अगर हम बात करें तो इस समय पूरे देश में उसका आक्रोश हमें देखने को मिल रहा है। हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। डॉक्टर्स ने सर्विसेज में रिज्यूम नहीं हो पा रही हॉस्पिटल की सर्विसेज। डॉक्टर्स के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं सर? भारत वर्ष के इतिहास में ऐसा बनाव पहली बार बना है कि कोई रेसिडेंट ट्रेनी डॉक्टर अपने अस्पताल में हो और वहाँ उनका रेप और मर्डर हो जाए। तो इसलिए छोटे मोटे असॉल्ट होते रहते थे, लेकिन ऐसा मर्डर और रेप दोनों पहली बार हुआ है। तो सभी डॉक्टरों को लगा है कि हमें आदमी दो ही जगह सेफ रह जाए, अपने घर में या अपने वर्क प्लेस में। दोनों ही जगह में सेफ नहीं है वर्क प्लेस में, तो ज़्यादा गुस्सा है। और एक गरीब माँ बाप की बच्ची जो एमडी कर रही थी, एकलौती बेटी थी, और उनको कलकत्ता के सरकार ने, बंगाल सरकार ने हैंडल बरोबर नहीं किया। जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने हैंडल नहीं किया। उनको पहले बोला कि अपना बच्ची ने सुसाइड किया है,
फिर वो आए तो 3-4 घंटे उनको मिलने नहीं दिया, ऐसी खबरें आ रही है। तो सबको ऐसा लगा कि ये क्या कर रहे हैं। एक तो बच्ची खोई है, उसका रेप हुआ है, और आप उनको अच्छी तरह से माँ बाप के साथ एम्पैथी के साथ, सहानुभूति के साथ या सेंसिटिविटी के साथ बात नहीं करते हैं, तो सब में गुस्सा ज्यादा है। और आजकल पहले से ज्यादा बच्चियों की संख्या मेडिकल में 60% है। तो हर एक लड़की ऐसा फील रही है कि इसके साथ हुआ तो हमारे साथ होगा, इसलिए गुस्सा है। जी सर, साथ ही में अगर हम बात इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की करें तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा पहले भी 48 घंटे के लिए सारी सर्विसेज को बंद कर दिया गया था। उसके बाद से हमें प्रोटेस्ट ज्यादा देखने को मिले हैं। और अगर हम बात एसोसिएशन की करें तो एसोसिएशन द्वारा पीएम का इंटरफेरेंस भी डिमांड किया गया था, एक लेटर भेज के आप लोगों ने उसकी डिमांड रखी थी कि सीधा सेंट्रल को इस मामले को देखना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट्स को एक सुपरविजन मिलेगा। इसको लेकर क्या कहेंगे, किस तरह के आपको नतीजे उसके बाद देखने को मिले हैं सर? हमारे प्रधानमंत्री को हमने लेटर लिखा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो किया, उससे हमारा 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि उन्होंने सुओ मोटो करके जो टास्क फोर्स बनाया कि ऐसे ऐसी सुविधा करो, कमेटी बनाई, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का इंटरवल आ गया उनका, तो वो आ गया है। हमने जो टास्क फोर्स है जिसमें गवर्नमेंट की सेक्रेटरी वगैरह भी है, तो डायरेक्ट गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई और मेंबर सभी जगह से लिए हैं, जो सीनियर लोग हैं उनको लिया हुआ है। तो वो बच्चों की क्या क्या तकलीफें हैं, उनके वर्क प्लेस में उनको क्या सिक्योरिटी चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल में कभी कितने भी लोग आते हैं जाते हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं होती, सब साधन लेके आते हैं नहीं आते हैं, तो वो अब सुप्रीम कोर्ट खुद देख रहा है और वो ही कर रहा है। तो इनडायरेक्टली अब केंद्र सरकार का रोल कम हुआ है, क्योंकि जो डायरेक्शन दिया वो सुप्रीम कोर्ट को देंगे। हम उनको बात कर रहे हैं कि एक सेंट्रल प्रोटेक्शन लॉ लाना चाहिए, जो कोविड के टाइम था, तो उसमें भी उन्होंने कमेटी बनाई, उसमें चर्चा चल रही है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि अब हाईकोर्ट भी देख रहा है, जो बच्ची का मर्डर हुआ, रेप हुआ, तो उसको हाईकोर्ट ने सीबीआई की जांच के दे दी, और सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए उन्होंने इंटरवेंशन करके टास्क फोर्स बनाया। तो हमारी 80% जो डिमांड थी वो सब साइड लाइन हो गई है। इसलिए हम अब डायरेक्ट प्रधानमंत्री या उनको इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि टास्क फोर्स में जो बने चीफ सेक्रेटरी होंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे, हेल्थ सेक्रेटरी होंगे, होम सेक्रेटरी होंगे, वो गवर्नमेंट का पार्ट है, और हमारे 8 मेंबर है। और स्टेक होल्डर में वो आईएमए को भी बुलाएंगे कि आपकी डिमांड क्या है, वो रेसिडेंट डॉक्टर के जब एसोसिएशन उनको भी बुलाएंगे, तो सबसे वो लेके 3 वीक्स में वो अपना रिपोर्ट देंगे, उस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगा। सर, अगर हम बात साथ में जस्टिस की करें तो इस समय किस तरह का जस्टिस या किस तरह का न्याय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक चाहता है कि मिले उस डॉक्टर को, और आगे जाके सख्त से सख्त किस तरह के बड़े कदम उठाए जाएं कि ऐसी कोई और घटना हमें देखने को ना मिले? कायदा की जैसे लीगल प्रोविजन होते हैं रेप और मर्डर में, वो तो होगा ही, लेकिन वर्क प्लेस पे हुआ है और उसमें एक से ज्यादा इन्वॉल्व है, ऐसी भीति है सबको, तो हम कानून ऐसा बनाए कि उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए। नहीं, ऐसा नहीं कि 10 साल लगे, 15 साल लगे, सब भूल जाए, बाद में उसको फांसी दो या ना दो, कोई मतलब नहीं है। उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाए, उनको कानूनी जो प्रावधान है उसमें सजा दो, लेकिन जल्दी दो, तो एक एग्जाम्पल बैठे कि ये काम किया तो उनको जल्दी सजा मिली। तो हमारा ये है कि उसकी सीबीआई अच्छी तरह से जांच करे, जो भी कल्प्रिट को उसको पकड़े और उसको फास्ट ट्रैक में चलाया जाए। तो फास्ट ट्रैक में केस चलेगा और जल्दी उसका डिसीजन आएगा, डे टू डे या वीक टू वीक तो बेसिस पे, कि आज मुदत हुई और 1 महीने के बाद हुई, 1 साल के बाद हुई, तो उसका मतलब नहीं है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में करके वो उसको जल्दी चलाए और बच्ची को जल्दी न्याय मिले, वही हमारी डिमांड है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमने कहा किस तरह से जनरल सेक्रेटरी जी ने तमाम बातें रखी, उन्होंने बताया किस तरह से एक जो जस्टिस का प्रोसीजर है उसको भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके जाना चाहिए और आगे ऐसे हमें केसेस ना देखने को मिले, इसके लिए सख्त और बड़े कदम उठाने चाहिए। इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए बनी रहे मेरे साथ पंजाब केसरी में। कैमरा पर्सन विकी के साथ खुशी राणा, पंजाब केसरी, दिल्ली।